Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. Myself Tejaswini, and in our guest interview today, we have invited Mr. Dinkar Shukla sir. Dinkar sir, welcome to Acharya 90 FM. Thank you so much, Tejaswini. Let me brief you about Dinkar Shukla ji. A small introduction about him. He is a seasoned banker with an experience of more than a decade in managing a large portfolio of acquiring digital products for various banks and WLA. He has worked with a few large sector private banks and is now working with one of the MNC banks as Vice President of Acquiring Channel. Under his leadership, he contributed to a financial institution for opening 1,107 BC stores with ATM facilities in a single day, which is a Guinness Book of World Records. So we would like to know about this also in detail. Sure. He also led a core project team managing digital products like ATM, CDM, e-com to fulfill the launch journey of a new bank licensed by Reserve Bank of India in 2015. His passion is Hindi and Urdu poetry and Bharatiya Vaidik Jyotish. He is here with us today to share his experience as to how to manage the balance in work life and personal life. He will also enrich the session with his poetry and astrology experiences. So it's a great time to meet Dinkar Shukla ji, as I do have a personal interest in literature, though it is in Marathi, Hindi or any other form of literature. So first of all, I would like to know, as we are also from marketing management students, and our students would like to know more from you regarding the banking sector. So a little bit of your journey throughout the years, looking back to over the years, how you have done the growth in the banking sector. Okay, so first of all, Tejaswini, thank you so much. You have briefed so nicely about my career path and journey. I don't think I have anything to say, anything more onto it, but I've done my MBA in Finance and IT after completing my science graduation. I've been working into the private banks in various products and sectors, and digital, as you have already mentioned. The growth which is required, that we should actually love our work. So we were discussing before this interview also that how do we manage our work-life balance. We spend so many hours at workplaces. You also spend. So work-life balance is something where everybody is talking too much of pressure in the corporate sector for everybody to deliver as per the expectation of the organization. I follow only one mantra and principle to grow in the career. One should love the work. Because when we start loving our work, we feel that we are working not at workplace but at home only. Because we have people loving at home, so we like to spend more and more time at home. The moment we start loving our work, we don't feel like we are not at home. So when you make your workplace as good, as loving, that you would like to spend more number of hours at your workplace. Now people working from home also in the corporate culture and IT sectors. There also, if you are with your work things like your laptop and you are doing some meetings and all, we should be involved into that work as much that we do not get bored. So this is something you start loving and you start enjoying your work. So that is how I also keep myself motivated. This is the only thing by which we can grow in the career. Anyone can grow in that. Like actors, they do acting since morning to evening, long schedules. But they keep doing it because they love it. They do not get tired. Cricketers play cricket for the entire day, but they love their cricket, so they do not get bored, and they keep growing. So this is the only thing. You keep loving people, you keep loving your work, then everything will be happening around you. That's what I feel. Thanks. And would like, it's a curiosity, like you write poems also, like you write poetry in Hindi and also in Urdu. Would like to ask what made you to write the poetry and what made you to learn Urdu, because Urdu is quite difficult. Yes. When my name is Dinkar, as you see, बहुत बड़े रामधारी सिंह दिनकर कवि हुए. मेरा नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, मेरी फैमिली ने, और दिनकर की कविताओं से प्रेरित होकर उन्होंने मेरा एक नाम रखा. तो कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. तो मेरे परिवार की सोच कहीं रामधारी सिंह दिनकर के वहाँ जाकर मिली और मेरा नाम उन्होंने इस पर रखा. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली. मैं ये कहना चाहूंगा कि दिनकर नाम रखा, शायद नाम चरितार्थ करने का जो प्रारब्ध था वो मुझ में समाया हुआ था, इसलिए मैं कविताएं करने लगा. शुरुआती दौर में मैं बहुत
इमैच्योर टाइप की कविताएं लिखता था। हाँ। लेकिन मुझे चूंकि इसमें आनंद आता था, रस आता था। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने स्कूल में था, वहां पर मैं कविता पाठ के अंदर जाया करता था, हिंदी कविताएं बोलता था और हाँ। लोग प्रशंसा करते थे। हाँ। शायद वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैं पहले किसी और की लिखी हुई कविताएं पढ़ता था, हाँ, हाँ। फिर मैं अपनी लिखी हुई स्वरचित रचनाएं पढ़ने लगा। ओके। तो आपके फेवरेट कवि, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी तो उनमें से आपके फेवरेट कवि कौन है? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा रामधारी सिंह जी दिनकर है, हाँ। उनकी लिखी हुई एक बहुत बड़ा महाकाव्य है रश्मि रथी, अच्छा। जिसको कई जगह पर आजकल कई सारे सॉन्ग्स भी हैं जो रश्मि रथी के लिखे हुए महाकाव्य के ऊपर आ रहे हैं। हाँ। इसमें महाभारत के समय में जब श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास में कि न्याय पांडवों को मिलना चाहिए, हाँ, हाँ। और कौरवों के पास जाते हैं, वहां पर किस तरीके से दुर्योधन क्या कहता है और कृष्ण क्या कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से महाकाव्य लिखा है। ओके। ये मेरी एक बहुत पसंदीदा महाकाव्यों में से एक है। हाँ। और एक और है जिसको मैं ये कहना चाहूंगा कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, उसमें एक बहुत अच्छी कविता है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्वव्यन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। चिंता में आज हर व्यक्ति घिरा हुआ है। जब हम ये कविता पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि चिंता और चिंतन में क्या डिफरेंस है, वो समझना बहुत जरूरी है। जब हम उसको अंतर को समझ लेते हैं तो बड़े कवियों ने, महाकवियों ने जो शब्दों को कागजों पर अपनी कलम से उतारा है, वो प्राण फूंका है। व्यक्ति यदि उस शब्दों को प्राण समझकर पढ़ेगा तो उसके प्राण में भी चेतना जरूर से जागृत होगी, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसे कि हमारे स्कूल के किताबों में रहता था प्रेमचंद जी की कविता काफी मशहूर थी, राइट? मुंशी प्रेमचंद साहब जो थे वो हिंदी साहित्य काफी अच्छा लिखते थे। कविताओं से ज्यादा उनकी कहानियां बहुत प्रचलित हैं। राइट। तो गोदान उनका एक बहुत बड़ा है। और मुंशी प्रेमचंद बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मुंशी प्रेमचंद साहब का अगर आप देखेंगे, उल्लेख कहीं पर पढ़ेंगे तो उनके कपड़े एकदम साधारण होते थे, जीवन उन्होंने साधारण जिया, लेकिन उनकी रचनाएं ऐसी थी जिनको पढ़कर आप देखेंगे कि मन में अपने आप विचारों में क्रांति आती थी। मैं ये कहूंगा कि पहले के समय में बहुत बड़े बड़े महाकवि हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत बहुत बड़े कवि थे, जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे कवि थे, महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी रचनाएं हैं, हम सब पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद साहब की तो मैंने भी कहा ही है। और भी कई सारे ऐसे कवि थे। कुछ अलग साहित्य भी होते थे जो शायद हिंदी साहित्य नहीं थे। सादत हसन मंटो साहब हुआ करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की बहुत अच्छी रचनाएं प्रचलित हैं। उन्होंने हमारे देश को इतना गान दिया, उन्होंने हमारे देश को, जो हम सब गाते हैं आज़ादी और गणतंत्र दिवस पर। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो हिंदी काव्य की संख्या थोड़ी कम हुई है। लेकिन फिर भी आज ये कहूंगा कि जहां जहां पर हिंदी रचनाओं को लिखने वाले कवि हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं जिनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूं, और वो प्रेरणा लेकर ही मैं लिख पाता हूं। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह से कविताएं देखकर लिखते हुए। जी। और पहला ही हमारा शो है, तो मैं पहली कविता आपसे सुनना चाहती हूँ, तो कौन सी प्रस्तुत कर रहे हैं? हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व जो होता है वो ईश्वर का होता है। जी, बिल्कुल। कण कण में ईश्वर है, हर चेतन में ईश्वर है। तो मैं सबसे पहले मेरे जो इष्ट हैं, और कल ही राम जी हमारे घर पधारे हैं। राम को सबने मनाया है। राम अवतार थे विष्णु का, और विष्णु अवतार में जब राम आए, उन्होंने हमारी धरती पर यह समझाया कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, और गलत का किस तरह से हमें विरोध करना है। लेकिन मैं आज जो कविता सुनाऊंगा आपको वो है भगवान शिव के ऊपर। शिव अपने आप में संपूर्ण है। शिव से डर भी लगता है लोगों को, शिव से प्यार भी होता है लोगों को। शिव ऐसे हैं जो अपने आप को पुरुष भी समझ सकते हैं और नारी उनमें समाहित भी है। शंकर भगवान का आप देखेंगे तो उनका गुस्सा बहुत तेज है, क्रोध, अत्यंत क्रोध है उनका। तो ये मेरी एक रचना है आदि अनंत। तो शुरुआत हम ईश्वर से करते हैं कि रक्त नहीं शिराओं में कांति अग्नि धधकती है। रक्त नहीं शिराओं में कांति अग्नि धधकती है, श्वेत हिम नहीं तन पर यह भस्म की भभूति है। वो हिमालय में निवास करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो पूरे बर्फ में गिरे हुए हैं, फिर भी उनको भस्म अच्छी लगती है। तो और उनकी जब हम कहते हैं गुस्सा आता है तब हमारी नसें फड़क रही है, क्रोध निकल रहा है रक्त में, तो उनको जब गुस्सा आता है तीसरा नेत्र खुलता है, पूरी सृष्टि भस्म हो जाती है। तो रक्त नहीं शिराओं में कांति अग्नि धधकती है, श्वेत हिम नहीं तन पर तो यह भस्म की भभूति है। काल खंड के प्रश्नों पर क्या यह तांडव की अनुभूति है, यह तो तम के मध्य सत्य प्रकाश पुंज की तृतीय दृष्टि है।
हर व्यक्ति में तम समाया हुआ है, और उसके अंदर यदि सत्य खोजना है तो जिस प्रकार भगवान शिव अपनी तृतीय दृष्टि खोलते हैं, व्यक्ति अपने मन की तीसरी दृष्टि खोलेगा तो वह तामसिक से सात्विक की ओर प्रग्रसर होगा। तो कालखंड के प्रश्नों पर क्या यह तांडव की अनुभूति है, यह तो तम के मध्य सत्य प्रकाश पुंज की तृतीय दृष्टि है। वेग प्रचंड जल प्रवाह का जटाओं में जिसके नीर है। गंगा का वेग बड़ा प्रचंड है और उन्होंने अपनी जटाओं में उसको रोका, तो ये माता गंगा के लिए समर्पित भगवान शिव की जटाओं में कि वेग प्रचंड जल प्रवाह का जटाओं में जिसके नीर है, देकर वर करे संहार असुरों का, वो आदि अनंत वीर है। उन्होंने कई असुरों को वर दिए, फिर उनको असुरों को संहार करने के लिए उनको खुद को आना पड़ा। तो अंत में अंत पंक्ति है इस कविता की, समाहित सृष्टि के स्थूल और सूक्ष्म में जो ओज तीव्र है, यह अप्रतिम पूर्ण सौंदर्य अर्ध नर नारी परम शिव है। तो ये भगवान शिव को मेरी प्रार्थना है, और इस कविता के साथ हम, आप बताएं आगे हम किस प्रकार से प्रग्रसर करें। आप हाँ, अगले पड़ाव पे जाते पड़ाव हैं, पर कैसे जाएं? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जुड़ते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM। आज हम दिनकर शुक्ला जी से बातचीत कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू। आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और आज हम कवि दिनकर शुक्ला जी से बातचीत कर रहे हैं। सर, मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने थोड़ा ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त किया है। ज्योतिष की तरफ मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे ज्योतिष की शिक्षा भी लेनी चाहिए? हाँ, ये एक मेरा दूसरा पसंदीदा विषय है। मैं बचपन में हमारे सामने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, आज तो शायद उनका उम्र 90 से भी ऊपर होगा, 95 से ऊपर होंगे वो। ऐसे ही शौक से उनके पास जाया करता था। वो पंडित थे। हाँ। वैसे तो वो शिक्षक थे, शिक्षा के अलावा वो ज्योतिष का कार्य भी ये किया करते थे। तो उत्सुकता मन में जागी और मैं ज्योतिष उनके साथ सीखने लगा। फिर अपना जॉब में आया, करियर में आया, पढ़ाई करी तो छूट गया। पिछले 5-6 सालों में दोबारा मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे करना चाहिए। कॉलेज टाइम में मैं आउटडोर स्पोर्ट्स किया करता था, एनसीसी किया करता था, शूटिंग रेंज में जाया करता था मैं। एनसीसी के कैंप में मेरा 3rd रैंक था शूटिंग के अंदर, और बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब आउटडोर स्पोर्ट्स किया करता था। लेकिन प्रोफेशन के साथ में, जॉब के साथ में आउटडोर एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, और अपने अंदर के आदमी को जिंदा रखने के लिए यदि शौक जिंदा ना रखे तो आदमी तुरंत मर जाएगा। तो आदमी, इंसान मर जाता है, उसके शौक ही उसे जिंदा रखते हैं। तो अपने उन शौक को जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में खुशी बनाए रखूं, उसमें से एक कविता और दूसरा ज्योतिष मैंने रखा। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। एस्ट्रोलॉजी का जो पहले देखी जाती थी 100 साल से पहले, उस एस्ट्रोलॉजी में और आज में बहुत अंतर है। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, वहां पर आप घड़ी से टाइम मिलाएंगे, बराबर टाइम मिलेगा। कुछ आज के 800-1000 साल पहले वो घड़ी बनाई गई। जबकि इंसानों ने जो घड़ी हाथ में पहनते हैं, वो घड़ी तो अभी 200-400 साल पहले बनी है। हमारे ज्योतिषियों को, ऋषियों को ये ज्ञान था, ध्यान लगाकर कि पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में महसूस करके ये देखना कि सूर्य कहाँ है और दूसरे नक्षत्र तारे सब कहाँ हैं। ये बड़ा ही रोचक विषय है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में आगे हमारे क्या घटने वाला है या क्या घटा है। एस्ट्रोलॉजी नाउ इज अ destiny management. It is predicted. I would not say this is an astrology. It is in a destiny management. When you go to a doctor, says that you don't eat much sugar, otherwise you will get diabetic. If you don't avoid, we get diabetic and we have to go to the medicines. We have to take medicines. Astrology भी वैसा ही है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर इतना गाइड करता है कि ये समय ठीक नहीं है, आप संभल कर चलिए। मैं जो अंधविश्वास है उसका पूर्ण रूप से विरोध करूंगा, लेकिन ज्योतिष के अंदर तारों की, सूर्य की और बाकी ग्रहों की गणना के आधार पर, राशियों के आधार पर इतना समझाया जाता है कि हमें ये करेंगे इससे हमारा ठीक हो सकता है, हम ये करेंगे इससे हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आज इसको भी व्यवसाय बना दिया। जिस तरीके से हम डर जाते हैं और बहुत सारा, मतलब इंडिया में इलाज हो सकता है लेकिन हम फॉरेन जाके करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर उस इलाज का डर होता है। ऐसे ही ज्योतिष के पास, व्यक्ति के पास डर होता है, तो कोई होते हैं लोग उसको पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लालसा में चले जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से ज्योतिष का कहीं कहीं लोगों में एक बहुत अलग तरीके से सोच भी डेवलप हुआ है। लेकिन मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत साहित्य पढ़ा है। ये ज्योतिष के बारे में एक मैं कहना चाहूंगा।
जी, अभी और भी कविताएं सुनना चाहूंगी। हाँ। एक दो कविता जरूर पेश कीजिए। मैं अभी अभी 3 कविताएं मेरी आपको मैं सुनाऊंगा या जो बचपन के ऊपर है। अच्छा। हमारा जन्म ईश्वर के स्मरण के साथ होता है। हाँ। फिर हम हमारा बचपन जीते हैं, लेकिन हम सब अपना बचपन जी चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई ये कहेगा कि मुझे अपना बचपन अच्छा नहीं लगता है। हर व्यक्ति को अपना बचपन अच्छा लगता है। बचपन में बहुत सारी यादें होती है। तो मैं अपनी पहली कविता जो है बचपन के ऊपर, हाँ। छूटी हुई जिंदगी, ओके। ये सुनाना चाहूंगा। और सब इसमें अपना अपना बचपन जीने की कोशिश करिए। चलो एक बार फिर से बादलों के साथ दौड़ लगाते हैं। वाह। चलो एक बार फिर से बादलों के साथ दौड़ लगाते हैं। इठलाते हुए पूनम के चांद को फिर से पीछे छोड़कर आते हैं। हम बच्चे थे तब दौड़ते थे और बादलों के पीछे चांद छुपा रहता था। हम सोचते थे कि हम दौड़ रहे हैं, ये चांद हमारे से पीछे चला गया। ये बचपन का स्वभाव था। यस। तो चलो एक बार फिर से बादलों के साथ दौड़ लगाते हैं। इठलाते हुए उस पूनम के चांद को फिर से पीछे छोड़कर आते हैं। जो तुमने खोया, हाँ। जो तुमने खोया, जो मैंने खोया, चलो उस बचपन को ढूंढकर ढूंढते वापस हैं। लाते हैं। वाह। जुगनू जैसे चमकने वाले दोस्तों को आज रात फिर किसी बहाने से बुलाते हैं। क्या बात है। वाह वाह। पढ़ने की उस बहाने से फिर पूरी रात बातें कर हम मन बहला लेते हैं। कितना कमाया वो सब भूलकर जितना है आज सब खर्च कराते हैं। रिमझिम बारिश में एक बार फिर हम मन भरकर नहाते हैं। चलो एक बार फिर से बादलों के साथ दौड़ लगाते हैं। चलो एक बार फिर से बादलों के साथ दौड़ लगाते हैं। बहुत खूब। तो मुझे ऐसा लगा है तेजस्विनी जी, आपने अपना बचपन इसके साथ हाँ। जोड़ने की कोशिश करी होगी। दूसरी एक कविता है मेरी, पुरानी रजाई। एक बार मैं सो रहा था। हाँ। मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है। हाँ। फिर भी थोड़ा मौसम ठंडा हुआ और मुझे नींद आई। और मेरी माँ उस वक्त राजस्थान में थी और मैं सो गया और मुझे थोड़ा जुकाम हुआ। जब मैं उठा तब मैंने ये रचना लिखी। हाँ। क्योंकि मुझे याद आई मेरी माँ की कि मैं जब भी सोता था, मैं कभी ओढ़कर नहीं सोता था, तो माँ ढूंढते हुए आती थी और मुझे हाँ। कुछ न कुछ ओढ़ाती थी और देखती थी कि मेरे बच्चे को, मेरे लल्ला को ठंड ना लग जाए। वाह। तो जब मुझे जुकाम हुआ तो मैंने ये कविता लिखी। इसका शीर्षक है पुरानी रजाई। कितने साल बीते, कितने साल बीते और कितनी रातें गुजरी। हाँ। कितने साल बीते और कितनी रातें गुजरी। अब तो पुरानी रजाई की पूरी सिलाई भी जा उतरी। वाह। लेकिन अब भी जब मौसम ठंड का आता है, उस रजाई का आखिरी धागा भी मुझे तेरी याद दिलाता है। हाँ हाँ। तो ये बचपन माँ के साथ, बचपन की ये घटना और है। मेरे पास एक किताब हुआ करती थी, शायद हर आदमी के पास एक किताब होती है हाँ। जिससे हमें बड़ा प्रेम होता है और वो हाँ। किताब हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस किताब में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं। कुछ हम हमारे पत्र रखते हैं, कोई फूल रखते हैं, कोई अपने छुपे हुए पैसे रखते हैं। जी। तो सब अपनी उस किताब को याद कर सकते हैं। और ये मैंने बचपन की उसी किताब पर लिखी है कि मेरी एक पुरानी किताब खो गई है। इतना टेंशन में हम सब लोग कि हम बचपन भूल गए हैं और वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं, सबके जीवन से वो किताब खो गई है। तो हम आज उसको याद करते हैं कि मेरी एक पुरानी किताब खो गई है, क्या तुम्हें कहीं मिली है। मेरी एक पुरानी किताब खो गई है, क्या तुम्हें कहीं मिली है। ढेर सारी कहानियां छिपी थी उसमें, वाह। थोड़ी सी हंसी भी छुपी है। माँ के तकिए के नीचे से चुराए थोड़े से रुपए भी रखे थे उसमें। पूरी दुनिया खरीद लूं जिससे, वो माँ की डांट भी छुपी है। वाह। क्या तुम्हें कहीं मिली है। दिल के खाली कोने की यादें थी उसमें, खुद से किए हुए थोड़े से वादे भी थे। मेरी खुली सी आवाज और दबी सी खराश भी छिपी है। वाह। क्या तुम्हें कहीं मिली है। बिना सोचे समझे कुछ भी करने की तरकीबें थी उसमें। पापा का प्यार था उसमें और थोड़ी सी जेब खर्ची भी रखी है। क्या तुम्हें कहीं मिली है। मेरी एक पुरानी किताब खो गई है। वाह। ये मेरा बचपन के दौर पर जो मैंने लिखी है, मैंने आपको सुनाई कविताएं। हाँ। और अभी थोड़ा कॉलेज लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा फेवरेट फोटो है कि वो जो प्यार मोहब्बत इश्क, वो उस मुकाम पे जाते हैं, चलते हैं। अब हाँ। लेकर चलेंगे ना। हाँ, जरूर जरूर जरूर। ये जो जर्नी हमने शुरू की है कि जन्म व्यक्ति का जन्म जो होता है वो हाँ। शिव के साथ जन्म होता है। अच्छा। और उसके बाद हम अपना बचपन जीते हैं, फिर हम कॉलेज में आते हैं। यस। सबको अपना कॉलेज बड़ा याद होता है, कॉलेज या कॉलेज के बाद वाला दौर जिसमें हाँ, यौवन का। हाँ। यौवन का जिसमें आकर्षण पैदा होता है और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ने हमें वैसा ही बनाया। पुरुष स्त्री को समझने की कोशिश करता है, स्त्री पुरुष को समझने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले, चूंकि मैं एक पुरुष हूँ और मैं स्त्रियों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रचना कहना चाहूंगा। किसी भी पुरुष को स्त्री को समझना जरूरी है और सबसे पहले उसका सम्मान करना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। जब तक हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, हाँ। हमें समझ भी नहीं पाएंगे। या। तो और स्त्रियों के लिए आज दौर बदला है।
आज हम एक कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कई जगह पर ऐसा भी है जहाँ पर सम्मान में कमी आती है, तो मैं उन सभी पुरुषों को ये कविता सुनाना चाहूंगा, वो समझें कि स्त्री क्या होती है। हाँ। इसका शीर्षक है वीरबाला। कि हो जीवन पथ पर संघर्ष, हो जीवन पथ पर संघर्ष, पर नहीं थमती साहस की आंधी। वाह। स्त्रियां पुरुषों से अधिक साहसी होती है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। हो जीवन पथ पर संघर्ष, पर नहीं थमती साहस की आंधी। दैदीप्यमान है मुख दर्पण, कठिन समय को वो हंसकर सहती। हाँ। स्वजन विरह वेदना को होकर करुणामय, उसने उसे अपना साथी बनाया। बहती अश्री धाराओं को सजोकर कैसे उसने मोती नीर है पिरोया। तूफानों में भी ना झुकी वह, तूफानों से भी ना रुकी वह। डर के घने अंधेरे में भी संभल कर हमेशा निडर चलती वह। दीप शिखा सी जलती और करती वो चहुमुखी उजाला। कुटिलों को कौटिल्य का पाठ पढ़ाने वाली, वो है वीरबाला, वो है वीरबाला। ये समस्त नारियों को मेरी तरफ से ये कविता समर्पित। इसके बाद जब हम समझने की बात करते हैं कि कैसे एक पुरुष को एक स्त्री को समझना चाहिए, तो मैं इसको ये कहूँगा कि मैं बायस नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा जजमेंट नहीं है, मैं जज नहीं करता किसी को। ये एक सामान्य धारणा है कि और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, जो कई सारी स्टडीज में भी निकल कर आया। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था इसी टाइप की साइकोलॉजिकल स्टडी, जिसमें बताया गया था कि कैसे लड़कियों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में परेशानी होती है और लड़के फट से कुछ भी कह देते हैं और सोचते नहीं। स्वभाव है, वैसा स्वभाव है हमारे अंदर। तो ये मैंने उस पर लिखी है। इसका शीर्षक है जिद्दी। मतलब हम घर पे भी देखते हैं, एक पति को अपनी पत्नी को मनाने में बहुत मुश्किल आती है, आसानी से नहीं मानती है, लेकिन जब वो खुश होती है तब एकदम जुड़ी रहती है। तो कहती है वो मत कहो। हाँ। कहती है वो मत कहो जो तुम्हें कहना है। कहती है वो मत कहो जो तुम्हें कहना है। अरे कहती है वो कहो वो जो मुझे कहना है। हाँ। सुनना है उसे वो जो उसे मुझे बताना है, पर बताना है उसे वो जो सिर्फ मुझे सुनना है। महसूस करती है वो जो वो कह नहीं सकती। हाँ। महसूस करती है वो जो वो कह नहीं सकती। कहकर जो महसूस करती है वो बता नहीं सकती। इत्तेफाक है या ये हकीकत कोई, चाहती है वो हमें पर वो हमें बता नहीं सकती। चाहती है वो हमें पर हमें बता नहीं सकती। ये इसके बाद जब हम समझ गए हैं कि कैसे एक स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, फिर बात आती है कि हम उसे मनाएं कैसे। कि अब हमारा दौर शुरू हुआ है कॉलेज का, जहाँ पर हमें किसी से इश्क हुआ और इश्क होने के बाद हम उससे कहना चाहते हैं कि तू भी मेरे से इश्क कर, जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। स्त्रियां बड़ी शर्म हया में रहती है, इतना आसानी से कोई लड़की हाँ कहती नहीं है। तो कॉलेज के टाइम में जब सब लोगों का एक अपना अपना इश्क होता था, तो ये है इश्क का तिलिस्म। क्योंकि इश्क जो समझ गया तो वो तिलिस्म नहीं रहा, वो तिलिस्म टूट गया। तिलिस्म बोले जादू होता है। जैसे पांडवों ने कौरवों के लिए एक वो महल बनाया था जिसमें दुर्योधन पानी समझकर गिर गया। हाँ। या हम कई सारी अरबी मूवीज में देखते हैं, वहां पर जादू से ऐसी दुनिया बनाते हैं, तिलिस्म है वो। तो इश्क एक तिलिस्म है। अगर लोग समझ गए इश्क क्या है तो वो तिलिस्म नहीं रहा। इसलिए इस कविता का शीर्षक मेरा इश्क का तिलिस्म है। इसमें क्या कहते हैं कि तेरा वाला इश्क, अब सबका अपना अपना इश्क होता है, इश्क करने का तरीका होता है, कि तेरा वाला इश्क मेरे वाले इश्क से जुदा कैसे। तेरा वाला इश्क मेरे वाले इश्क से जुदा कैसे, गर मैं तुझसे जुदा हूं तो तू मेरा खुदा कैसे। तेरा वाला इश्क मेरे वाले इश्क से जुदा कैसे, गर मैं तुझसे जुदा हूं तो तू मेरा खुदा कैसे। मांगी माफी थी मेरे कमजोर दिल ने तुझसे, पर टूटे दिल की आवाज तू सुनती कैसे। तू गैरों के बाजार में खड़ी है, मैं अपना समझूं किसको। वो गैर तेरे दोस्त हैं तो मैं उनको दोस्त बोलूं कैसे। वो गैर तेरे दोस्त हैं तो मैं उनको दोस्त बोलूं कैसे। अरे तू तो बहने वाली हवा है, मैं तुझको पकड़ूं कैसे। और अगर पकड़ भी लिया तो तुझे मैं अपनी सांसों में रोकूं कैसे। तू मुझे कयामत से पहले काफिर बोल के लौट गई। तू मुझे कयामत से पहले काफिर बोल के लौट गई। मैं तुझे अपना खुदा मानता रहा, तेरे खुदा से मैं तुझे अब मांगू कैसे। जब वो मुझे समझ नहीं पाई, वो कह गई कि तुम मुझसे इश्क नहीं करते हो, तुम्हें मेरे से इश्क नहीं है, तुम्हारा ये अट्रैक्शन है, इन्फेक्चुएशन है, झूरी है, और वो चली गई। तो ये आखिरी पंक्ति मैंने उसके लिए लिखी है कि तू मुझे कयामत से पहले काफिर कह के लौट गई, मैं तुझे अपना खुदा मानता रहा, मैं तेरे खुदा से तुझे मांगू कैसे। ये जहां पर मैंने कहा कि एक इश्क हुआ है, इसके बाद एक मैं आपको एक मैंने
आप अगर मान लो ब्रेक लेने का टाइम है ले सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी एक हाँ अगली सुनाता हूँ। यस श्योर श्योर। तो धन्यवाद तेजस्विनी जी, आपने मुझे एक और कुछ पंक्तियां मेरी सुनाने के लिए कहा, लेकिन इन पंक्तियों को सुनाने से पहले एक उर्दू की छोटी सी शायरी या नज्म आप कह सकते हैं जो मैंने लिखी है। इसका शीर्षक है मल्लिकाई जहन्नुम। हाँ। लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये इस रचना का उद्भव कैसे हुआ। हाँ ये मैंने एक औरत के ऊपर लिखी है जिसकी जिंदगी में 2 शौहर हुए हाँ और दोनों शौहर उसे तलाक देकर चले गए। उसकी जिंदगी मल्लिकाई जहन्नुम, वो उसे मल्लिका अपनी जिंदगी की बनाने आए थे, लेकिन वो मल्लिकाई जहन्नुम बन के रह गई। उनमें से एक ऐसा था जो बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यार से उसे अपने हथेलियों पर रखता था। जब छोड़कर गया तब भी उसे वो बहुत प्यार से छोड़कर गया। दूसरा वाला भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसका रवैया थोड़ा कड़क था, सॉफ्ट नहीं था, और अपनी जिंदगी में उसके बहुत सारे पेन थे, दर्द थे, वो लेकर आया। तो उसका इश्क करने का तरीका अलग था, लेकिन उसने उन दोनों से इश्क किया। तो वो ये कविता कह रही है, वो औरत ये कविता कह रही है। हाँ। अब देखिए, हमने प्यार देख लिया है कॉलेज का। अब जहाँ निकाह या शादी करने की बात आती है, वहां पर कैसे मसले टूट जाते हैं। तो ये दर्द है उस औरत के अपने दिल में कि 2 कातिलों को आपस में समझ लेने दो, 2 कातिलों को आपस में समझ लेने दो, कौन बड़ा कातिल है। कत्ल दोनों कर गए उसका। कि 2 कातिलों को आपस में समझ लेने दो, कौन बड़ा कातिल है। एक शबे हिज्र का मुल्जिम है तो दूसरा शबे रुसवाई का। ये मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको उर्दू समझ नहीं आती है। शबे हिज्र मतलब होता है जुदाई की रात जी, और शबे रुसवाई मतलब होता है बेइज्जती की रात। अब उनमें से एक आदमी जो गया था, चूंकि वो सॉफ्ट था, हाँ तो उसको उससे जुदा होकर दर्द हो रहा था, इसलिए वो शबे हिज्र था, जुदाई की रात। दूसरा जो थोड़ा कड़क मिजाज का था, वो उससे लड़ झगड़ के छोड़ के गया, तो वो बेइज्जती की रात थी उसके लिए। तो 2 कातिलों को आपस में समझ लेने दो, कौन बड़ा कातिल है। एक शबे हिज्र का मुल्जिम है तो दूसरा शबे रुसवाई का। लानत दोनों पर है, लानत दोनों पर है, पर मसला यह है कि किस पर बड़ी लानत है। लानत दोनों पर है, पर मसला यह है कि किस पर बड़ी लानत है। एक हिसाबे अजाब लेकर आया तो दूसरा गया अजाब देकर। अजाब माने दर्द, पेन, पीड़ा। एक ऑलरेडी पेन में था, उसकी जिंदगी में पेन लेकर आया, और दूसरा आदमी जो अच्छा था वो चला गया तो उसको दर्द हो गया। तो लानत दोनों पर है, पर मसला यह है कि किस पर बड़ी लानत है। एक हिसाबे अजाब लेकर आया तो दूसरा गया अजाब देकर। चालाक दोनों ना थे, उन्होंने इश्क किया, चालाकी नहीं थी उनके इश्क में। चालाक दोनों ना थे, समझ ना आया खेल कौन बड़ा खेल गया। एक गुलाम बनाकर छोड़ गया तो दूसरे ने छोड़ा आका बनाकर। जो टफ वाला था उसे गुलाम की तरह ट्रीट करता था, और जो सॉफ्ट वाला था उसे वो एकदम अपनी मल्लिका आका बनाकर रखता था। तो चालाक दोनों ना थे, समझ ना आया खेल कौन बड़ा खेल गया। एक गुलाम बनाकर छोड़ गया तो दूसरे ने छोड़ा आका बनाकर। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, शरीक हयात मतलब जिसको हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी की जन्नत में उसको मल्लिका बनाते हैं, शादी करके लाते हैं, वो शरीक हयात होती है। कि मोहब्बत का फर्ज किसने कितना निभाया मैं समझ ना पाई। मोहब्बत का फर्ज किसने कितना निभाया मैं समझ ना पाई। आए दोनों मुझे शरीके हयात बनाने, रही मैं ताउम्र मल्लिकाई जहन्नुम बनकर। रही मैं ताउम्र मल्लिकाई जहन्नुम बनकर। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक और यू। इसी मोड़ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और भी वापस जुड़ते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM। आज हम कवि दिनकर शुक्ला जी से बातचीत कर रहे हैं। Acharya 90 FM 90 FM Welcome after the break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio, and we are having poet Dinkar Shukla ji. He is a seasoned banker also with us today. So, sir, now I would like to ask you how you have invested a large amount of your time shaping your career and writing these poems also. I don't know how you get time. Banking में तो अभी हम देखते हैं 24 घंटे नहीं, लेकिन 18 से 20 घंटे तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाल ही 2-4 घंटे सोने को हमको मिलता है, लेकिन इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, थोड़ा हेक्टिक जॉब, उसमें टारगेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बैंकिंग में तो बहुत टफ लाइफ है। तो और पोएट्री, ये दोनों एकदम क्या बोलते हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। So how you manage both the things? How you find time to read books? How you find time to write poems? इसके बारे में जानना चाहूँगी। धन्यवाद तेजस्विनी जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं सभी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को
मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। जी। मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं अपना अनुभव बता के लोगों को ये कहूं कि आप भी ऐसा करें। जो मैंने किया, मैंने मेरे ऊपर किया, मेरे लिए वो काम किया, वो मैं समझाता हूँ। मेरी जो अगली कविता आएगी वो शायद इसी टॉपिक पे है। आपने बहुत Okay. अच्छा पॉइंट छोड़ा जो उससे रिलेटेड भी है। आपने कभी हम एक अरबी की सब्जी खाते हैं, आपने देखा होगा, मम्मी घर पे बनाती है तो उस हाथ में एक अरबी छिली हुई रखते हैं हम। हाँ। उसको पकड़ते हैं तो पकड़ने में नहीं आती है, हाँ। स्लिप हो जाती है, Yes. छूट जाती है। वक्त ऐसा ही है। वक्त और विचार जब हम उनको जितना पकड़ते हैं उतना हमारे से दूर भागते हैं। जब हम जिंदगी में ये गिनते हैं कि आज मेरा 18वां जन्म दिवस है, हाँ, आज मेरा 21वां है, तो वो वक्त हमसे भाग रहा है। हाँ, जब हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो मेरे कम से कम भी 82 ईयर्स बाकी है, मैं 100 साल जीऊंगा, 18 ही निकले, अभी तो मुझे 82 साल और जीना है, तो वक्त भागेगा नहीं, वक्त हमारे साथ रहेगा। जी, इसी तरीके से विचार हैं। हाँ, विचारों को जितना हम बांधने की कोशिश करेंगे, हाँ, या हम विचारों को ये सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, तो विचार हमसे भागेंगे। बैंक में चाहे कितना भी टाइम बिताता हूँ, अपनी नौकरी में चाहे मैं कितना भी समय बिताता हूँ, या कोई भी किसी भी नौकरी में कितना भी समय बिताए, मैंने जैसा पहले भी कहा कुछ देर पहले कि अपने काम को अगर हम प्यार करेंगे, हाँ, वो हमें लगेगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। जब हम घर आते हैं दिमाग बिल्कुल थका हुआ नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसी जगह गए थे जहां पर हम किसी चीज से प्यार करने गए थे। अच्छा, और प्यार करने से इंसान का हौसला बढ़ता है। तो जब मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं थका हुआ नहीं आता हूँ, मैं एनर्जेटिक आता हूँ, क्योंकि अच्छा। अपने काम पर मैं अपने काम से मोहब्बत करके आया हूँ। और हाँ। जब मैं घर आता हूँ तो मेरे विचार है, उन विचारों से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो पूरा दिन मेरा जो है अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता है। रातें थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रातों में करने को कुछ होता नहीं है, दिन में बहुत कुछ होता है। तो मेरी अगली कविता जो आपने प्रश्न किया उसी पर है। हम सब काम कर रहे हैं, तनाव में हैं, जी, तो चूंकि इश्क हो गया, कॉलेज से बाहर आ गए, अब हम काम कर रहे हैं और हाँ। काफी टेंशन में हैं हम लोग, तो उस पर ये कविता है। इसमें आप ऐसा कल्पना करिए कि दो लोग हैं, हाँ, उसमें से एक आदमी, दोनों लोग समुद्र किनारे खड़े हैं, एक आदमी रेत के अंदर खड़ा हुआ है, ओके, पांव अपने रेत में धसा के खड़ा हुआ, दूसरा आदमी थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, और दूसरा आदमी खुशी के बारे में पूछता है। यही सब हमारे साथ है। हाँ। तू ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूँ, तेरा स्टेटस ऊपर है, मेरा नीचे है, पैकेज कम है। हम सब यही करते हैं। यस, यस, ठीक है। तो एक आदमी दूसरे से पूछता होगा, यार तू तो इतनी रेत में खड़ा, तेरे को तो बड़ा मजा आ रहा होगा। तो वो आदमी कहता है, अब रेत यहाँ पे खुशी है, हाँ, और मेरी कविता का शीर्षक है मुट्ठी भर खुशी, अच्छा, कि तूने मुट्ठी बंद कर रेत को पकड़ा। अब वो रेत में खड़ा हुआ आदमी दूसरे से कह रहा है कि तूने मुट्ठी बंद कर रेत को पकड़ा, मैं तो खुद पूरा रेत में खड़ा था। तूने मुट्ठी बंद कर रेत को पकड़ा, मैं तो खुद पूरा रेत में खड़ा था, खुश तू भी न था, खुश मैं भी न था। हाँ, तूने मुट्ठी बनकर रेत को पकड़ा, मैं तो खुद पूरा रेत में खड़ा था, खुश तू भी न था, खुश मैं भी न था। सवाल ये था कि सवाल ने किसको ज्यादा जकड़ा था। वाह, सवाल ये था कि सवाल ने किसको ज्यादा जकड़ा था। खुशी उसी के हाथ से सरकी जिसने उसे जोर से पकड़ा था, क्योंकि खुश तू भी न था, खुश मैं भी न था। तो चाहे आप कितनी भी खुशियों के माहौल में पड़े हों, लेकिन आप अगर उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो खुशी मिल नहीं पाएगी। खुशी मिलने के लिए हमें खुशी को छोड़ना पड़ेगा, तभी खुशी पकड़ में आएगी। राइट, तो ये एक मैंने उस दौर पर लिखी थी मैंने। ये बहुत सारी हमने कविताएं हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में, या हमने बचपन से कॉलेज और सामान्य भाषाओं में लिखी है। क्योंकि आपने शुरू में हिंदी साहित्य की बात करी थी, और मेरा बहुत सम्मान है हिंदी भाषा के प्रति। मैं राजस्थान से हूँ, और बचपन मेरा जो निकला है वो मेरा हिंदी भाषा में निकला है। वाह, तो हमने जैसे बड़े बड़े कवियों के नाम लिए, मैं तो उनके सामने कहीं कुछ भी नहीं हूँ, और उनकी कविताएं पढ़कर और मेरे में प्रेरणा आई है लिखने की। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे मौका दें, मैं अपनी कुछ हिंदी में लिखी हुई रचनाएं आपको सुनाना चाहूंगा। उसमें से 2 ही सुनाऊंगा मैं, जी। क्योंकि हिंदी, क्लिष्ट हिंदी आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर भी मैं अपनी 2 कविताएं हिंदी में आपको सुनाना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, ये पहली कविता द्वंद्व है। हाँ, अब द्वंद्व, मनुष्य जब जन्म लेता है उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छा पार्ट होता है और एक कोई बुरा पार्ट होता है। जैसे सत्य है तो असत्य भी है हमारे अंदर। हम सही करते हैं तो हमारे में गलत भी है। हाँ। हम आसान करते हैं, हमारे में कठिन भी होता है। हम सोते हुए सपने देखते हैं तो जागते हुए उन सपनों को हम सच नहीं मानते, लेकिन सोते हुए उनको सच मानते हैं। हाँ, और इसी प्रकार से मैंने एक द्वंद्व के ऊपर कविता लिखी, और इसका शीर्षक मैंने द्वंद्व रखा है। ये शुद्ध हिंदी में कविता है कि किंचित असत्य हो गया, हाँ, किंचित असत्य हो गया, पूर्ण सत्य हो गया। हाँ, क्योंकि जो असत्य है वो सत्य में से ही निकलता है, वाह। असत्य होता ही नहीं है। पहले सत्य होता है, फिर इंसान, मनुष्य सोचता है कि मेरे को किस तरह के इसको मैनिपुलेट करके झूठ बोलना है। तो
किंचित असत्य हो गया पूर्ण सत्य हो गया, सत्य में था निहित वो किंचित सा असत्य हो गया। वाह। तो मनुष्य क्या करता है, असत्य बोलते बोलते ये भूल जाता है कि सत्य क्या था, और वो जो थोड़ा सा असत्य होता है जो सत्य में से निकला है वो पूरा का पूरा असत्य हो जाता है। और ये कलयुग की परिभाषा है। सतयुग में शायद सभी सच्चे थे, कोई असत्य नहीं बोलता था, लेकिन आज कलयुग है। हम पैदा होते हैं, हम सच बोलते हैं, हमारे अंदर विकार आता है, हम बड़े होते हैं, समझने लगते हैं जो थोड़ा सा असत्य था वो उड़ बढ़ के पूरा असत्य हो जाता है, और हम सब लोग बिगड़ गए अब। हाँ। तो ये द्वंद्व है इस मनुष्य के भीतर का, कि किंचित असत्य हो गया पूर्ण सत्य हो गया, सत्य में जो था निहित किंचित सा वो अब असत्य हो गया। सत्य असत्य की इस पूर्णता में निज प्राण में, सत्य असत्य की इस पूर्णता में निज प्राण में जो मुझसा ईश्वर था अब वो मनुष्य हो गया। वाह। तो जब सत्य था तब तक ही ईश्वर था, जहां असत्य आया वहां मैं मनुष्य हो गया। कि जो सरल था वो कठिन हो गया। अगली पंक्तियां देखिएगा आप। हाँ। जो था सरल वो कठिन हो गया, जो था कठिन वो सरल हो गया। इस सरल कठिन की उहापोह में जो था मुझ में, इस सरल कठिन की उहापोह में जो था मुझ में मुझसा था, हाँ। जो था मुझ में मुझसा था वो अब मुझसे भिन्न हो गया, मुझसे अलग हो गया वो। अगली पंक्तियों में आप देखेंगे ये पूरी सृष्टि एक सपना है। अगर हम साहित्य या शास्त्रों की बात करें तो पूरी दुनिया एक सपना है। हम पैदा होते हैं, सपना शुरू होता है, हम मरते हैं, हमारा सपना खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन हम रोज रात को भी सोते हैं, तब भी हम सपने देखते हैं, उन सपनों को सच मान लेते हैं। तो अगली पंक्तियां उस पर है कि निद्रा में स्वप्न था, निद्रा में स्वप्न था, जागृत में अस्वप्न हो गया। निद्रा में स्वप्न था, जागृत में अस्वप्न हो गया। स्वप्न में जो अस्वप्न दृष्टिगत था, स्वप्न में जो अस्वप्न दृष्टिगत था वो अब गोचर हो गया। स्वप्न अस्वप्न के इस द्वंद्व में जो था आनंद मुझ में वो आनंदित सा अब वो रुदन हो गया। जो था आनंद मुझ में वो आनंदित सा अब वो रुदन हो गया। रचना में रुचि थी, रचना में रुचि थी तो कवि दिनकर हो गया। रुचि रखकर रचने से वो स्वरचित हो गया। इस रचना में आपके रुचिगत होने से, इस रचना में आपके रुचिगत होने से जो सुषुप्त था कवि मुझ में वो अवचेतन में अब चेतनागत हो गया, वो अवचेतन में अब चेतनागत हो गया। मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे ये कविता पढ़ने का। इससे मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से मेरे अंदर ये प्रेरणा आई है कि मैं कविता लिखूं। एक मेरे कृष्ण प्रिय मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। मैं शायद उतना अच्छा कवि नहीं था, पर वो मेरे कृष्ण प्रिय मित्र जो थे, उनसे मुझे ये भावना मिली कि कैसे हम अंदर में जाकर और फिर कुछ विचार बाहर ला पाए। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी बहुत स्थित्यंतर है कविता में आपके, लेकिन बचपन की कविताओं में आपने लिखा है, फिर यौवन के थोड़ी कविताएं आपने लिखी है, और फिर जीवन का ज्ञान या सार उस कविताओं में दिखाई देता है। तो ये सारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ डू यू सी दैट दिस चेंजेस इम्पैक्ट ऑन योर आर्ट? हाँ, मैं छोटा था तब जब मैंने पहली बार अपनी एक रचना लिखी थी, वो मैं कुछ किताबें आया करती थी, कहानी आया करती थी, तो मुझे जंगल से बड़ा प्रेम था। और जंगल से रिलेटेड मैं, जैसे अभी भी कई सारी मूवीज भी आती है, मोगली करके एक पीछे मूवी आई थी, और मैं आज भी अंदर मेरे एक बच्चा छुपा हुआ है, सबके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। तो वो मोगली मूवी भी देखी थी मैंने, और मुझे आज भी आप देखेंगे तो टॉम एंड जेरी अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है, वो सबको अच्छा लगता है। और बचपन में जब मैंने पहली बार एक कहानी लिखी थी, कविता नहीं लिखी थी, वो ऐसे ही जंगल के कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे मैंने अपने दिमाग में, और उन चरित्रों के ऊपर मैंने कहानी लिखी थी जो मेरे साथी छात्रों ने, दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने स्कूल में पढ़ी, सुनी, और उनको अच्छी लगी। जैसे जैसे हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते गए, हम अलग अलग लोगों से मिलते गए और अनुभव लेते गए, तो जीवन के इस सफर में शायद मैं जो पहले लिखता था, जो मैं आज लिखता हूँ और जो मैं आगे लिखूंगा, उसमें अंतर आ सकता है। वो अनुभव है जो हम अपने साथ जोड़ते जाते हैं, और उन अनुभवों को हम शब्दों के रूप में यहाँ लिखते जाते हैं। शब्दों में प्राण तभी आते हैं जब शब्दों में भावनाएं होती है। बिना भावनाओं के शब्दों में प्राण कभी नहीं आ सकते। अगर शब्दों में प्राण नहीं है तो आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। बाकी तो सारे अक्षर हैं जो कागज पर लिखे हुए हैं कलम की स्याही से। मैं आपसे चाहूंगा कि मैं एक अपनी आखिरी रचना है, आप अगर आपके पास अगर कुछ है मुझसे कहने के लिए आप कह सकते हैं। मेरी एक आखिरी रचना है, आप अगर मुझे अलाउ करेंगे मैं बोलूंगा। ये मेरा धन्यवाद है। ये मेरा धन्यवाद उन सभी के लिए जिन्होंने अपना समय निकाला है मुझे सुनने के लिए। व्यक्ति बोलने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं।
और मैं पृथक हूँ। हाँ, पृथक का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। तो ये मेरी हिंदी की एक रचना है कि मैं पृथक हूँ। हम्म, चूंकि मैं पृथक हूँ, झूठों की दुनिया में स्वयं के मुख से सच सुनकर आनंदित हो लेता हूँ। वाह, चूंकि मैं पृथक हूँ, झूठों की दुनिया में स्वयं के मुख से सच सुनकर आनंदित हो लेता हूँ। मोह माया, चूंकि मैं वैरागी हूँ, हाँ, चूंकि मैं वैरागी हूँ, मोह माया के संसार में अपना सर्वस्व तजकर ईश्वर में हो लेता हूँ। चूंकि मैं शिष्य हूँ, चूंकि मैं शिष्य हूँ, गुरूपक अज्ञान के अंधकार से रूरूपक ज्ञान में प्रकाशमय हो लेता हूँ। वाह। चूंकि मैं मनुष्य हूँ, भूमंडल के इस पशुमय वातावरण में भी सहिष्णुता एवं करुणा का भाव रख लेता हूँ। चूंकि मैं आपका प्रिय हूँ, चूंकि मैं आपका प्रिय हूँ, आपकी व्यस्त कार्यकारिणी में इन पंक्तियों के लिए आपका समय निकाल लेता हूँ, आपका समय निकाल लेता हूँ। मैं करबद्ध धन्यवाद दूंगा रेडियो आचार्य 90 FM को, और तेजस्विनी जी को, और राहुल जी को, सबको जी। जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आकर मेरी मन की विचार भावनाएं सुनने के लिए। इसके लिए मैं अपना हृदय से अत्यंत आभारी हूँ। इट वॉज रादर आ प्लेजर। इतना सुंदर और ऐसा काव्य हमें आज सुनने को मिला। आजकल हम बहुत कम पढ़ते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, तो आज बहुत अच्छा ये मुशायरा ही कहते हैं ना। मुशायरा, हाँ, अब हम जो नाम दे लें, यदि उर्दू में होता है तो मुशायरा होता मुशायरा, है। yes। और ये तो मिक्स था अभी। हमने हर और तरह का मुशायरा में बहुत सारे कवि संलग्न होते हैं, राइट? हाँ, मुशायरा उर्दू शब्द है। हाँ। और उर्दू अल्फाजों में मुशायरा कहते हैं, और कवि गोष्ठी कह लें, कवि सम्मेलन कह लें। हाँ, तो उसमें कई सारे कवि आते हैं जहाँ पर अपनी रचनाएं सुनाते हैं। मुशायरे में भी कई शायर आते हैं, अपनी शायरियां सुनाते हैं। एक तो भाषा अलग है। हाँ। भाषा अलग है। जी, but आपने थोड़ा विडम्बन यानी जो थोड़ा कॉमेडी रहता है वो वाला ये ट्राई नहीं किया है शायद। अभी आपने कहा है, मुझे बिल्कुल इस पर विचार करना पड़ेगा। और हमने थोड़ा सीरियस नोट पे रचनाओं का सादरीकरण जी किया जी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, it was nice, it was very really time, it was a pleasure time for me spending with you, and thank you for joining us on Acharya 90 Thank you. FM। Thank you And, everyone. ऐसे ही जब भी आप इंडिया में हो आप आते रहिएगा, हमें विजिट करते रहिएगा। Thank और you, एक thank you, प्रोग्राम sir. के साथ हम वापस आपसे जुड़ेंगे। So friends, today in our guest interview we had Mr. Dinkar Shukla ji. He is a seasoned banker and also a great poet. तो आपको ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो हमारे YouTube चैनल आचार्य 90 FM को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए मैं तेजस्विनी आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Acharya 90